Good morning, students. In today's class, we will study about the impact of the population change. Now, what are the impacts of the population change on the country or on the uh, means the life of the people, economics, and various on the Earth surface. So, we studied that the population change may be negative also and positive also. Population in some areas, the population may be increasing, and in some areas, it may be decreasing also or reducing also. So, the small increase in population is desirable. We know that if the population will not increase, uh, means the popular increase in the population is very much desirable for in the growing economy, in the growing economics or where the growing countries or in every country the population a small increase is desirable. But when the population grows beyond the certain level, जब ये कोई पर्टिकुलर सर्टेन लेवल से ज़्यादा पहुंच जाती हैं, तो दैट इज़ द alarming that starts creating the some certain type of the problem. जब population कुछ particular level से ज़्यादा पहुंच जाए, then it has the certain levels leads to the problem. When it goes to the after the certain level, कुछ limits के ज़्यादा जब population growth होना शुरू हो जाती है, that start creating the problem. So and the one of the biggest problem is the deflection of the resources. Means the when population burden on the natural resources increases over the limit, then uh, the resources started deflection. The deflections of the resources starts. मतलब जो resources हैं वो कम होने लग जाते हैं. जैसे किसी एरिया में जब ज़्यादा पॉपुलेशन सिटीज़ के अंदर जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ शुरू हो जाती है. इसमें सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, प्रोडक्शंस कम हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो जो रिसोर्सेज है उनका कमी होना शुरू हो जाती है. एंड पॉपुलेशन लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो द मैटर ऑफ कंसर्न. जब पॉपुलेशन कम होती है, कोई कम होना शुरू हो जाती है, जैसे कुछ कंट्री ऐसा कहा जाता है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है. मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ती है दैट इज द इट इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन. बट जब पॉपुलेशन कम होने लग जाती है एक पर्टिकुलर लेवल से, दैट इज ऑल्सो द कंसर्न. उसके एग्जाम्पल्स आज के टाइम में चाइना एंड जापान है, जहाँ पे चाइना में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम हो गया है, एंड उसकी वजह से वहाँ पे कंसर्न्स पैदा हो गए हैं, एंड दे हैड टू चेंज देयर पॉपुलेशन पॉलिसी. इसलिए उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ की जो पॉलिसी थी उसको चेंज करना पड़ा है. It indicates that resources that had supported the population earlier are now insufficient to maintain the population. और जब ऐसा होता है, जब पॉपुलेशन कम हो जाती है, जब मतलब जब पॉपुलेशन कम होने लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि उसका ये मतलब होता है कि जो नेचर के अंदर रिसोर्सेज थे वो कम हो गए हैं, और वो अब जितनी पॉपुलेशन है उसका बर्डन सहन नहीं कर सकते. तो इसका मतलब पॉपुलेशन कम होने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है, जो रिसोर्सेज हैं वह इनसफिशिएंट है. There are some diseases and the deadly HIV and AIDS epidemics in Asia, Africa, and some parts of the Commonwealth of the independent states in Asia have pushed up the death rates and reduced average life expectancy. This has slowed down the population growth. और कुछ डेडली डिजीजेज है जैसे कि HIV, एड्स एंड सम पेंडेमिक्स, उनकी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है और पॉपुलेशन की ग्रोथ कम. नाउ population growth rate. The annual population growth rate in India is 1.6%. अभी 2011 में जो
इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो है 1.64. सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 years to double their populations, wherever some countries will do not show symptoms of doubling their population. जो आज का जो टाइम है उसमें कुछ कंट्री जो इस रेट के हिसाब से जो ये पॉपुलेशन रेट है इसके हिसाब से कुछ कंट्रीज को तो 318 ईयर्स लगेंगे पॉपुलेशन को डबल होने में, और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे साइन ही नहीं है कि इस रेट से पॉपुलेशन डबल हो सकती है. Now, next one, it was the population, means the impact of the population change. जब population ज़्यादा होती है तब भी इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट होता है, population कम होती है उसका भी कोई न कोई रीजन होता है, वो भी एक कंसर्निंग होती है. तो ये जो लेवल पर्टिकुलर जो डिजाइडेबल रेट है उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती रहे तो किसी भी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं होती है. Now the next topic of this chapter is the demographical demographic transition. अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है जब पॉपुलेशन के ग्रोथ में या पॉपुलेशन के की ग्रोथ रेट के अंदर या पॉपुलेशन का जो बच्चों के डेथ रेट या बर्थ रेट के अंदर जब चेंजेज आ जाते हैं, जब मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हर देश का हर कंट्री का पॉपुलेशन जो ट्रांजिशन है वो अलग हो जाता है. पॉपुलेशन का जो बढ़ने का तरीका है, उनका जो रहने का तरीका है और जो उनके लाइफ स्टाइल है, कल्चरल सोशल एक्टिविटीज है, वो उसमें ट्रांजिशन आ जाता है. ट्रांजिशन मतलब चेंज आ जाता है. तो ये क्या है, व्हाट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स द ट्रांजिशन इन द population in uh, uh, in the factors like lifestyle, education, economic, cultural, social. When these changes occur in particular population, that is called the demographic transition. So, demographic transition theory can be used to describe and predict the future populations of any area. And this ट्रांजिशन थ्योरी मतलब जब तो इससे व्हाट विल बी द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एनी एरिया उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में या समय में इस एरिया की पॉपुलेशन इस तरह से होने वाली है. Now, the theory tells us that the population of any region changes from high births and high deaths to the low births and low deaths as society progresses from rural agrarian uh, and illiterate to the urban industrial and literate society. So this theory says that when the population means the of any region from high birth rate and high death rate to low birth rate and low death rate at the society progress. जैसे जैसे सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है, जो रूरल एग्रियन एंड इलिटरेट सोसाइटीज या पॉपुलेशन से अर्बन एंड लिटरेट सोसाइटी में चेंज होती है. मतलब जैसे जैसे रूरल पॉपुलेशन कम होती जाती है और इलिटरेट पॉपुलेशन कम होती जाती है, अर्बन इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और लिटरेट मतलब लोग पढ़ने मतलब उनका पढ़ने लिखने का लेवल बढ़ जाता है, उनके क्या नाम है खेती के बजाय वो इंडस्ट्री के ऊपर डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं. तो पॉपुलेशन का जो हाई बर्थ रेट और लो बर्थ रेट से कम बर्थ रेट्स एंड लो बर्थ डेथ्स हो जाती है. मतलब गाँव जितना पॉपुलेशन मतलब रूरल एग्रियन होगी, गाँव के खेती करने वाले और बिना पढ़े लिखी पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन में बर्थ रेट एंड डेथ रेट ज़्यादा होती है. मतलब पढ़े जो जब खेती रूरल बिना पढ़े लिखे और गांव की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होती है और बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन गांवों और बिना पढ़ी लिखी और गांवों की पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज और पढ़ी लिखी पॉपुलेशन में बदलती है तो
बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है। तो दिस इज द पैटर्न एंड दिस मीन्स दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस, मतलब जो इस थ्योरी के से ये पता लगता है कि पॉपुलेशन का ट्रांजिशन इस तरह से होता है। Now next, these changes occur in stages which are collectively known as the demographic style. And these changes, कौन से changes? मतलब हाई बर्थ रेट और लो बर्थ रेट से कम बर्थ रेट एंड कम डेथ रेट का जो ट्रांजिशन होता है ये स्टेजेज में होता है, एंड दीज स्टेजेज आर नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल। और जो ये स्टेजेज है इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफिक साइकिल में क्या होता है, आ, बिना पढ़ी लिखी और खेती करने वाली पॉपुलेशन सिटीज और पढ़ी लिखी पॉपुलेशन के अंदर चेंज होती है तो वहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट कम हो जाती है। Now, this is the cycle rural agrarian to urban industrial population। क्या होता है कि रूरल से अर्बन इंडस्ट्रियल, रूरल एग्रियन से अर्बन इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन में ट्रांजिशन होता है। तो रूरल एग्रियन मतलब गांवों की खेती करने वाली पॉपुलेशन, अर्बन इंडस्ट्रियल मीन्स शहरों की इंडस्ट्रीज और सर्विसेज के अंदर काम करने वाले लोग खेती के ऊपर। अर्बन इंडस्ट्रियल में खेती के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है, रूरल एग्रियन की डिपेंडेंसी पूरी की पूरी खेती के ऊपर होती है। Now there are the total three stages of the population transition. Population transition की total three stages है. The first stage is the high fertility and high mortality. फर्स्ट स्टेज होती है जो गांवों के खेती करने वाली पॉपुलेशन की। इस पॉपुलेशन में इस स्टेज के अंदर बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा होती है, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब लोगों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन जो मोर्टेलिटी है, जो मरने की रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। जितने जितने ज़्यादा पैदा होते हैं उतने ज़्यादा डेथ्स हो जाती है, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स टू डू द एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डेथ रेट्स मोर्टेलिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, क्योंकि एक तो प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं होती है, भूखमरी की कंडीशंस रहती हैं, और दूसरी बीमारियों की वजह से ज़्यादा मृत्यु होती है। तो दो रीजन, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, मेडिकल साइंसेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए लोग मेडिकल साइंस का यूज नहीं करते हैं। तो वहाँ पे एपिडेमिक्स ज़्यादा होती है, मतलब महामारियाँ ज़्यादा आती हैं, और खाना खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, मेल न्यूट्रिशन होता है लोगों को, तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होते हैं। तो उस डेथ रेट को कंपनसेट करने के लिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मतलब हाँ, जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो एक ही घर में 10-10, 15-15 बच्चे होते थे। मतलब 7-8 तो नॉर्मल होते थे। तो क्यों होते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अगर डेथ रेट होगी तो कोई न कोई तो सर्वाइव आगे करता रहेगा। The production growth is slow and most of the people are dependent on the agriculture। जो प्रोडक्शन रेट है, इस तरह की जो ट्रांजिशन होता है उसके अंदर प्रोडक्शन रेट बहुत कम होती है। लोग सब खेती करते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कम होता है, एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन अच्छे। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो ज़्यादातर लोग हैं वह most of the population is engaged in the एग्रीकल्चर। और क्योंकि जब एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं तो जब बड़ी फैमिली वहाँ असिस्ट होती है, बर्डन नहीं होती है, क्योंकि खेती के अंदर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो वजह मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो एक असिस्ट होती है। जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट।
Okay, so now in this type of population, the expectancy is low. People are more illiterate and have low levels of technology. इस तरह की पॉपुलेशंस के अंदर जो लोगों को जीने की जो उम्र होती है वो कम होती है एवरेज। वैसे तो गांव के लोग ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए जीते हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज डेथ होती है वो एक्सपेक्टेंसी होती है लाइफ की वो कम होती है। पीपल आर most of the people are illiterate and they have the low levels of the technology। उनके पास में वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। और जो लाइफ एक्सपेक्ट and 200 years ago all the countries of the world were in this stage। आज से 200 साल पहले तक वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन इसी ही कैटेगरीज के अंदर थी, इसी स्टेज के अंदर थी। उसके बाद से लोगों में जो ये था तो फर्स्ट स्टेज पॉपुलेशन का। fertility remains high in the beginning of the second stage। now what happens in the second stage? second stage के अंदर क्या होता है? In the second stage the fertility remains high in the beginning। शुरुआत में fertility ज़्यादा रहती है। The fertility remains high in the beginning of the second stage, but it declines with the time। जो second stage होती है उसके अंदर fertility rate ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में वह उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाती है। This is accompanied by the reduced mortality rate। लेकिन जैसे फर्टिलिटी का रेट कम होती है तो मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आने लग जाती है। तो इन द सेकंड स्टेज, इन द फर्स्ट स्टेज हाई फर्टिलिटी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट। In second stage, in the beginning, high fertility rate, but it declines with the time. And as the fertility rate declines, the mortality rate also declines। इम्प्रूवमेंट इन द सैनिटाइजेशन, इस तरह की जो का जो इस स्टेज में क्या होता है, देयर इज द इम्प्रूवमेंट इन द सैनिटेशन एंड द हेल्थ कंडीशंस। सैनिटेशन और हेल्थ कंडीशंस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाता है and it leads to the decline in the mortality। And because of the sanitation and the health conditions improvement, the mortality rate declines। लोगों का क्योंकि बीमारियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, लोग साफ सफाई से रहने लग जाते हैं, तो उसी वजह से मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। और इस वजह से क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गई है एंड फर्टिलिटी रेट बिगिनिंग में अभी भी ज़्यादा है, इस वजह से जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होती है, बहुत फास्ट पॉपुलेशन बढ़ती है। द पॉपुलेशन इज हाई। जो एडिशन नई पॉपुलेशन जो आती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वी कैन टेक द इन द दिस स्टेज वी कैन पुट इंडिया इन द सेकंड स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन ट्रांजिशन। Now the last stage in the what happens in the last stage, in the last stage uh, in the last stage the in the last stage, both fertility and mortality declines considerably। तो fertility rate भी कम हो जाती है and mortality rate भी कम हो जाती है इस second stage के अंदर। The population becomes urbanized, literate and has high technological knowledge and deliberately controls the family size। इस तरह की population के अंदर because the population is stable or grows slowly। In this stage the population grows very slowly। कम बहुत ही धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। या तो इधर द पॉपुलेशन इज स्टेबल या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ रेट, और इट ग्रोज इन वेरी स्लोली। द एंड पॉपुलेशन जो लोग हैं वो अर्गेनाइज हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, they have the high technical know-how and deliberately controls the family size। इस तरह से लोगों में जब
एजुकेटेड हो जाते हैं, रिकग्नाइज हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी का अच्छा उनको नॉलेज होता है, तो वह अपने आप ही फैमिली साइज को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। Uh, this shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. तो इससे ये पता लगता है, जो हमने अभी पढ़ा, इससे ये पता लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी रेट और देयर फर्टिलिटी। ऐसा नहीं है कि जैसे मानते हैं कि बच्चे तो भगवान की दया है, बच्चे तो जो पैदा होंगे वो होंगे ही सही। नहीं, ऐसा नहीं है। Everything depends on the human being, and every human being is flexible as the conditions changes, as the situation changes, they deliberately start controlling their population। वो अपने आप ही अपनी fertility rate को adjust कर लेते हैं। इंटेंट के different countries are at different stages of the demographic ट्रांजिशन। आज के टाइम पे हर कंट्री अपने अलग अलग स्टेज में, सम कंट्रीज आर इन द फर्स्ट स्टेज, दो वी कैन टेक द poor countries, especially poor countries like the African countries. Some countries are the second conditions. We can take the example of the India. We can put it in the second stage. And just like the China, Japan, America, European countries, those are in the third stage. They have managed their fertility rate and the population growth. Now, the last topic of this chapter is the population control measures। अब population को जब countries की population ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो the governments and the countries take some measures to control their population. And one of the family planning is the spacing and preventing uh, the birth of children. Now that is the family planning। पॉपुलेशन कंट्रोल की जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में क्या होती है, इट प्रिवेंट इट इज प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन, या बच्चों के बर्थ को कंट्रोल करती है। Access to the family planning service is a significant factor in limiting population growth and women's health। Uh, Governments put special access on the family planning, and if the population or the people has the access to family planning services, this is the important factor for limiting the population growth and improving the women's हेल्थ। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के अंदर वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर जोर दिया जाता है। फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रूव्ड एंड सेफ जो फैक्टर्स होते हैं, या जो मीन्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है, जिससे कि वुमेन्स की सेफ्टी और उनकी हेल्थ में कोई बुरा नुकसान नहीं होता है। द प्रोपेगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी of the contraceptives and disincentives for large families are some of the measures which can help production population control. And the measures taken are there, the free availability of the contraceptives. The means the which controls the birth. Contraceptives means which controls the birth of the children. So free availability of the contraceptive, and the means means removing the taxes on the large families, and this incentives for the large families। और बड़ी अगर जैसा कि पॉलिसी बनाई जाती है कि जिसके 3 बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, टैक्स डिसइंसेंटिव है। उनको जो बड़ी फैमिलीज होती हैं तो उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज या गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो जो बड़ी फैमिलीज होते हैं, ये कुछ मेजर्स हैं जिससे कि पॉपुलेशन का कंट्रोल की जा सकती है। थॉमस माल्थस इन हिज थ्योरी 1798 में स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। उनके हिसाब से कि जो लोगों की जनसंख्या है वह खाने की के बढ़ने की रेट से ज़्यादा बढ़ेगी, और ऐसा हुआ भी। 1798 के बाद में बहुत ही स्पीड से पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है। फर्दर
Any further increase would result in the population crest caused by famine, disease and war. अगर उस लिमिट से ज़्यादा और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। पॉपुलेशन क्रैश किसकी वजह से होगा? फेमाइन, अकाल पड़ने लग जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, बीमारियां फैलना, बीमारियां कंट्रोल नहीं होगी और वॉर होने लग जाएंगे। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो पॉपुलेशन को रोकने के जो तरीके हैं, उसको ज़्यादा बेटर है कि कोई भी फिजिकल चेक मतलब नेचर के द्वारा लोगों को कम किया जाए। नेचर के द्वारा मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, लोग कई तरह की चीज़ों से मरने लग जाते हैं, तो वो होता है फिजिकल चेक। इसलिए पॉपुलर प्रिवेंटिव चेक्स ज़्यादा बेटर हैं फिजिकल चेक से। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। और हमारे जो रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल, उनको सस्टेन करने के लिए, आगे की जनरेशन्स के लिए रखने के लिए पॉपुलेशन की ग्रोथ होना, पॉपुलेशन का कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। Thank you. This is the end of the chapter. Now, in the next classes, we will discuss the next second, third chapter.